कोई कलर मैंने Hello, am I audible? Yes, sir. Morning, sir. Yes, sir. Good morning.
Morning, sir. Good morning, Sangeeta. How are you? Fine, sir. How are you, sir? Fine, fine. Let's. I think that data visualization with ggplot2 got some concept how we could make these graphs. What are the basic grammar behind this? Okay. So let me start the session with Sam. I'm sharing my screen with you. So I hope my screen is in your window and we see some other things about ggplot2. I had explained you or something yesterday and then sorry last session and hmm, so I just review it once more. In ggplot2, you have to import the library ggplot2. Then we make one platform. Here we are taking the data empty cast as a MD. So I run this and I take in my global environment. And then I prepare a platform, ggplot, having the syntax and data, then aesthetic weight and mileage. So I got this platform here because I have given the object name, so it will not print, but I again show you. This is my platform I've got. Now I am giving some geometry to this platform. So in the geometry, I am taking the aesthetic color factor AM, shape VS, size factor gear. So you see, this I have given, and this is the warning message. Don't worry about the warning message. Then, if it is here error, then we should have some consideration about that. Otherwise, it's okay. Now, what I am doing, and we have also done this smooth the last session. Now, what I am doing, I will give the facet grid. This is a very, very pretty, very meaningful visualization. And I just delete this one. Facet grid. So what is facet? I will explain you here. And this is gear tilde cylinder. सिलेंडर टिल्डा गियर भी मैं लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम। मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, आप देखिएगा क्या चीज कैसे ग्राफ बनता है। Amazing. Look at this now.
So on the x-axis, we have the weight, which is a continuous variable. On the y-axis, we have the mileage, which is also a continuous variable. And factor and VS. Oh, sorry, M and VS. These are the categorical basically factor we have taken here. But gear and cylinder, these are the discrete. So we have taken on facets. So look at here. Number of gear 3, 4, 5. These are the gear. So and these are the cylinder. So I will show you say syntax again. Gear cylinder. So gear you will get here 3, 4, 5 and number of cylinder 4, 6, 8. You will get. Okay. We could interpret it easily. How we could interpret it, you will see, because there are only 32 observations, so we will get in the sum cell very few observations. Even only one we are getting. One car having 4 cylinder, 3 gears, which is straight engine and automatic. Okay. Here you see in the 8 cylinder, 3 gear, we have V-shaped engine. Circle is there, V-shaped engine and automatic. So most of the car which are having 8 cylinder, 3 gear are V-shaped and automatic. Here you see we are getting clear cut triangles. All the triangles are there. Having different color, that's okay. But most of the color are, the triangles are green. So look at here, we could say that 4 cylinder, 4 gear car having straight engine, all having straight engine, and most of them are, we could say that, manual. But with perspective of weight, you could also tell. Here you see the low weight, and the x-axis you will see it is here only, and the mileage is medium. Sorry, mean about 20 something. Okay. And here you see the weight is higher side and the mileage is lower side. Here see the mileage is higher side, weight is lower side, is also indicating this. So in this way, if you have the more observation, we could easily see the pattern and the clustering or the segmentation. How it has been segmented. What factor is affecting more in particular segment? What are the combinations are there? Is it clear to all? सर फैसेट का मतलब क्या हुआ इसमें? ये फैसेस दे दिए हमने, 2 फैसेट्स हम लोग जो दे देते हैं इसके अंदर, क्या एक्स वाई पे तो पहले अपन क्या दे रहे थे, इधर साइड में ही दे रहे थे ना, राइट में. वी हैव द डिफरेंट फैसेट्स. व्हाट इट 1 2 3 4 5 6 7 8. Just like we are making some segment. What it? ठीक है सर. That is called the face. तो ये सेगमेंट्स बन गए ना इसके अलग अलग, और हम देख सकते हैं कि क्या पैटर्न आ रहा है हर सेगमेंट में. Got it? कहीं हमें कुछ पैटर्न मिलेगा पर्टिकुलर, जैसे यहाँ आपको देखिए बहुत क्लियर पैटर्न मिल रहा है इसमें. इस वाले में आपका क्या नाम है, कितने सिलेंडर, 8 सिलेंडर और 3 ईयर्स में आप देखिए पैटर्न बिल्कुल क्लियर है. ये सब ऑटोमेटिक हैं, ये सब वी सब है. लो माइलेज है, हाई वेट साइड. हाई वेट, ये हाई माइलेज भी है ना? नहीं, लो माइलेज हुआ ना इधर, ये माइलेज यहाँ आ रहा है वाई एक्सिस पे, तो ये कम हुआ ना. ओके ओके ओके. इसके नीचे साइड में 50%. So basically ये they are 9 graphs that we are looking at separately. Yeah, these are called the facets. Okay.
Okay. तो ये बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन होता है। कई बार हमने कितने वेरिएबल ले लिए, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 डायमेंशन है हमारे पास इसमें है। और ये इजीली इंटरप्रेटेबल। जो हम पहले ले रहे थे 5 6 डायग्राम खाली एक ही उस पे, जो हमने पिछले उसमें लिया था, एक साइज भी ले लिया था इसमें, तो वो इतना अच्छे से इंटरप्रेटेबल नहीं था। ये उससे बेटर इंटरप्रेटेबल है ना। सर तो ये इसमें आप कहीं, हाँ बोलो। फैक्टर VS जो है इंजन्स वाला जो है हम्म, वो किधर है? दैट इज ऑन द व्हिच एक्सिस इज दैट ऑन? या नहीं नहीं एक्सिस पे नहीं, वो ये शेप पे, हम्म सर्किल और ट्रायंगल ये शो कर रहा है, कैटेगरी है ना वो। ओके भाई सर्किल जो है वो वी शेप्ड है, और ट्रायंगल जो है वो स्ट्रेट इंजन है, वी एस है ना। तो इसके लेजेंड में हाउ कम दीस कलर्स आर नॉट शोइंग? जो इसका लेजेंड है ये खाली शेप है, अच्छा शेप्स है तो इसके लिए नॉट शोइंग। शेप को खाली बता रहा है अब जा कि एसी में बैठ जा, सर्किल और ट्रायंगल। पानी पी पहले तो आके हैंड वॉश और कर पानी की और एसी में बैठो। जो सो एम है वो ऑटोमेटिक और मैनुअल सोप का लेगी 0 अभिषेक प्लीज हाँ, सोप रखा हुआ है यहाँ। ये कलर है। एम में अपन ने कलर लिया है, देखिएगा I'm मैं आपको sorry. सिंटेक्स बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखिएगा एम में मैंने क्या लिया, कलर लिया ना, ओके और शेप में मैंने क्या लिया है, वीएस लिया है। वीएस को काय के लिए लिया है, शेप के लिए, तो खाली शेप बताएगा, तो शेप में कलर थोड़ी बनना उसको, खाली शेप बता रहा है। ब्लैक कलर में डिफॉल्ट कलर तो ब्लैक है, तो ब्लैक में शेप बता रहा है कि सर्किल जो है वो वी शेप को शो करेगा, और ट्रायंगल जो है वो आपके स्ट्रेट इंजन को शो करेगा, ये बता रहा है खाली। और कलरिंग क्या शो कर रही है कि जो रेड कलर है वो ऑटोमेटिक को शो करेगा, और जो ग्रीन कलर है वो मैनुअल को शो करेगा। अब क्लियर हुआ? यस सर ये इसका वो है। और बाकी यहाँ आप जो लिखेंगे गियर जो है वो अलोंग वाई एक्सिस आएगा, अपोजिट है ना, जो अपन पहले लिखेंगे। ठीक है, हमेशा क्या होता है कि जो टिल्डा वाला फंक्शन है वाई टिल्डा एक्स होता है, आप ध्यान रखिएगा। यहाँ भी लिखा है, अपने पहले किया था जो लीनियर वाला किया था ना। आप देखिएगा जो स्मूथ कर्व मैंने बनाया था, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ स्मूथ कर्व, ये जो स्मूथ कर्व बनाया था ये भी वाई टिल्डा एक्स है। तो जब भी अपन टिल्डा लिखते हैं तो वाई पहले आता है और एक्स बाद में आता है। डज दैट मेक सेंस टू यू? yes sir so in this context how does it matter? How does it make a तो difference? गियर जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, अपोजिट टू वाई एक्सिस, है ना। गियर नंबर ऑफ गियर 3 4 5 दिख रहा है ये आपको। हाँ वाई एक्सिस माइलेज है अपना, है ना। ओके तो यहाँ अपन जब ग्रिड में ले रहे हैं तो माइलेज के अपोजिट आएगा गियर। क्लियर हुआ ये आप लोगों को सबको? ओके फाइन ठीक है एंड है ना, सिलेंडर एक्स के ऑपोजिट आएगा। एक्स के अपोजिट आएगा। डज दैट मेक सेंस टू यू कि भाई आपको ये मालूम रहना चाहिए क्या पहले लिखूंगा, मुझे कौन से किस एक्सिस के अपोजिट क्या चाहिए। गॉट इट? ठीक है बट इज देयर अ रीजन व्हाई वी सिलेक्टेड गियर ऑपोजिट वाई एंड एक्स सिलेंडर ऑपोजिट एक्स कि ये कोई भी पैटर्न फॉलो कर सकते हैं? कोई भी पैटर्न कर सकते हम हैं, पर सिलेंडर कई बार अपन को लगता है कि नहीं यार अपन ये ऊपर दे दें और ये साइड में दे दें। मान लीजिए ऊपर 4 है कैटेगरी, अभी तो 3 ही है, 4 6 8 दोनों ही जगह 3 3 है ना। 3 4 5 और 4 6 8 मान लीजिए 4 होते एक जगह, तो 4 यदि हॉरिजेंटल देते तो अच्छा नहीं लगता होता, लगता क्या? आप वर्टिकल में 4 देते हैं, या ग्राफ कैसा बन रहा है उसके हिसाब से भी कई बार देखना पड़ता है कि हमें भाई जो पॉइंट्स है किस तरह से हैं, तो हाइट ज्यादा हमें ज्यादा मायने रख रहा है या विड्थ ज्यादा मायने रख रहा है फिगर्स का, तो उसलिए भी हम लोग डिसाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग। वो कोई ऐसा कुछ नहीं है, टेक्निकल नहीं है कि मतलब हाँ ऐसा होगा तो यहाँ रखना है इसको यहाँ रखना है, वो कोई नहीं है। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपको फिगर कौन सा अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये फैसेट ग्रिड सबको समझ में आया क्या होता है? हाँ प्रियंका, Yes, sir. ये कुछ लोग बोलते ही नहीं है, 2 4 लोग हैं, आवाज ही नहीं आती।
समझ में नहीं आता आप लोगों का, तो अभी से का और इनका तो समझ में आता है। ये लोग बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। नहीं नहीं सर, आ रहा है। आ रहे हैं? ठीक। क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी लास्ट बेंचर हो मेरे उसमें। बैक बेंचर बोलते हैं, लास्ट बेंचर हैं, लास्ट बेंच पे बैठे रहते हैं। तो चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये सब चीजें अब मैं आपको और कुछ चीजें बताता हूँ इसमें। ये तो मैं बता ही चुका था, अब बिना एस्थेटिक के यदि लिखेंगे तो पूरे पे ही होता है। जियोम पॉइंट वगैरह में मैंने आपको बता दिया। अब हम जियोम स्मूथ भी कर चुके हैं, और अब हम बात करेंगे आज एक वीसीडी लाइब्रेरी है जिसमें डेटा सेट है आर्थराइटिस। शायद आप लोगों ने पहले देखा है आर्थराइटिस डेटा सेट, मैंने आपसे एक्सप्लेन किया कभी? हाँ सर, लास्ट टाइम किया था जब हम सिंटेक्स कर रहे थे। ठीक है, तो इसकी जरूरत तो नहीं है मुझे डेटा के बारे में बताने की, थोड़ा सा मैं फिर भी रिव्यू करूंगा, है ना। तो मैं इसको रन करता हूँ और मैं डायरेक्ट आर्थराइटिस ले रहा हूँ, उसको कोई एनवायरमेंट में नहीं डाल रहा हूँ, ग्लोबल में। आप देखिएगा कि इसमें 5 वेरिएबल है। आईडी है पेशेंट की, ट्रीटमेंट है, 2 तरह के ट्रीटमेंट है, ट्रीटेड और प्लेसिबो। जेंडर है मेल फीमेल, एज है जो कि इंटीजर है, और इम्प्रूव्ड है नॉन सम एंड मार्क्ड इम्प्रूवमेंट, है ना? ये हमारे पास है। इसमें आप देखिए एक ही वेरिएबल जो है वो कंटिन्यूस इंटीजर, इसको हम बोलेंगे एज, बाकी सब कैटेगरी का। यहाँ हम कुछ सीखना चाह रहे हैं कि भाई बार प्लॉट कैसे बनाएंगे। वो बार प्लॉट जो बनाया जाता है वो कैटेगरिकल वेरिएबल के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो मैं बाकी तो नहीं टेल और स्ट्रक्चर नहीं बता रहा हूँ आपको। तो ये मेरा प्लेटफॉर्म है ना, ये मैं प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ। मैंने अब पी नहीं लिखा है, मैं डायरेक्ट सब कर दे रहा हूँ, है ना। तो चाहता तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ पी, नहीं तो आप लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूज होंगे। ये मेरा पी हो गया, और ये पी प्लस व्हाट इज ना, ओके। हम लोग भी करेंगे साथ में। हाँ कर लीजिए ना, आप बेटर है, करिए साथ में तो थोड़ा सा समझ में आएंगी चीजें। ये इसमें लाइब्रेरी रन करना पड़ेगा क्या? हाँ VC? लाइब्रेरी रन करना पड़ेगा इसमें, करिए टाइप करके इसको। ये एलोकेट भी करना पड़ेगा, हेड आर्थराइटिस, टेल आर्थराइटिस वगैरह? नहीं, ये करना हो तो आप करिए, समझने के लिए है। हेड में 6 ऑब्जर्वेशन बताता है शुरू के, और स्ट्रक्चर देखना चाहें तो स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। ये तब डायरेक्ट पी पे आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर हेड में जो ये शुरू के जो ऑब्जर्वेशन दिखा रहा है वो लिमिटेड है, मतलब 1 से लेके 6 तक ऑब्जर्वेशन दिखा रहा है, और टेल में 79 से 84 हाँ वो लास्ट के बताता है वो 6। लास्ट के दिखाता है, मतलब 6 वेरिएबल दिखा रहा है ये। आप उसमें बढ़ा सकते हैं यदि आपको करना है, तो जो ब्रैकेट बनता है ना, जी उसमें आप 10 लिख देंगे तो 10 दिखाएगा, 200 लिख देंगे तो 200 दिखाएगा। ओके। है ना, आप लोग से हो जाए तो बता दीजिए।
डन सर। डन। ओके, तो पहले अपन ने ये प्लेटफॉर्म बनाते, थोड़ा इसको ओपन करता हूँ। एक प्लेटफॉर्म बनाया, इस प्लेटफॉर्म को प्रिंट करता हूँ। ये प्लेटफॉर्म बन गया, देखिए। तो मैंने क्या किया, इसमें जीजी प्लॉट में डेटा अर्थराइटिस लिया और एस्थेटिक एक ही लिया है, क्योंकि मुझे बार प्लॉट बनाना है। तो बार प्लॉट में जो कैटेगरिकल वेरिएबल है वो मैं ऐसे एस्थेटिक लूंगा। पॉइंट को नोट करिएगा, है ना, क्योंकि हम बार प्लॉट बना रहे हैं एक ही कैटेगरिकल वेरिएबल का जो है, तो उसको हम एस्थेटिक ले लेंगे। इम्प्रूव, अब इम्प्रूव में 3 कैटेगरी है, तो ये एस्थेटिक में बता देगा कि भैया नन सम एंड मार्क 3 कैटेगरी आ गई इम्प्रूव में। अब मुझे बार प्लॉट बनाना है, तो मैं जियोम बार लिखूंगा, खाली जियोम बार लिखा। और मैं अभी इस चीज को नहीं ले रहा हूँ, कलर्स को, मैं खाली जियोम बार लिख रहा हूँ। तो मुझे ये मिल गया है कि बार प्लॉट बन गया। अभी नन में इतने, सम में इतने और मार्क्ड में इतने। गॉट इट। अब मुझे इसमें कलर फिल करना है। मैं चाहूँ तो सिंगल कलर फिल कर सकता हूँ सब, मैं चाहूँ तो मल्टीपल कलर डिफरेंट ले सकता हूँ। 3 है तो मैंने 3 डिफरेंट कलर ले ली। यदि मैं मान लीजिए 3 कलर नहीं, एक ही कलर रखना चाहता हूँ, तो फिर मैं एक ही कलर लिखूंगा। ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं, सी की भी जरूरत नहीं, पर मैं यहाँ सी और ब्रैकेट रहने देता हूँ क्योंकि मुझे वापस आना है इसी को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने रेड कलर रख दिया, ठीक है। अब मैं वापस से इसके अंदर वो दूसरे कलर वो डाल देता हूँ जो मैंने हटाए थे, और आप देखिएगा कि डिफरेंट कलर्स आ गए इसमें, रेड ग्रीन। गॉट इट। सर कलर इसने अपने आप ही ले लिए, मतलब रेड जो है वो नन के लिए, सम के लिए ग्रीन, या जो जिस जो हिसाब से सीक्वेंस हम लोग दिया है अपन सीक्वेंस ने, दे रहे हैं। सीक्वेंस ओके। जो दे रहे हैं, है ना। देखिएगा क्या होता है कि यहाँ आप देखेंगे ना, नन सम एंड मार्क जो है ना, वो ऑर्डर्ड फैक्टर है। देखिए 2 तरह के फैक्टर होते हैं, एक ऑर्डर्ड फैक्टर होता है, एक सिंपल फैक्टर होता है। सिंपल फैक्टर में कुछ भी कहीं भी आ सकता था। मान लो वो उसकी जो एल्गोरिथम होती, हाई फ्रिक्वेंसी वाला पहले देगा, उससे कम वाला उसमें बाद में देगा, उससे बाद वाला। तो यदि ये ऑर्डर नहीं होगा, ये वाला फैक्टर, यदि मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं तो देखिएगा, आपको समझ में आएगा ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है। देखिएगा, इम्प्रूव में ऑर्डर फैक्टर लिखा है, दिख रहा है आपको। और यहाँ देखिएगा ट्रीटमेंट में खाली फैक्टर लिखा। क्लियर हो रही पॉइंट। अंतर समझिएगा। ऑर्डर फैक्टर में क्या होता है, एक ऑर्डर रहता है कि नन सबसे कम आएगा, सम आएगा, फिर मार्क्ड आएगा, एक इनका सीक्वेंस हो जाता है, और यही सीक्वेंस ही फॉलो करेगा। पर यदि मैं इसी तरह का ट्रीटमेंट का बनाऊं, तो वहाँ जो इनके अपने एल्गोरिथम होंगे वो यूज होंगे। मैं जैसे एक ट्रीटमेंट का बना देता हूँ, P1 ले लेता हूँ। मैं इसी में ले लिया, फायदा है। मैं कलर नहीं बताऊंगा इसमें, इसी में बता दूं। देखिए प्लेसिबो ज्यादा वाला है, ट्रीटेड कम वाला है, तो इसने प्लेसिबो पे ले लिया ट्रीटेड, क्योंकि ये ऑर्डर फैक्टर नहीं है। यदि ट्रीटमेंट में यदि ज्यादा फ्रिक्वेंसीज होती तो वो ट्रीटेड को पहले ले लेते। मैं एक और चेंज करके बताता हूँ। मेरे पास 3 थे ना, एक ट्रीटमेंट था, एक और फैक्टर था जेंडर, सेक्स। इसको देखते हैं। तो सर ये कैसे डिसाइड होता है कि ऑर्डर्ड फैक्टर है या सिंपल है? ये जब अपन डेटा फिट करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं, मैं आगे बताऊंगा, डेटा प्रिपरेशन में आएगी ये चीजें नेक्स्ट चैप्टर में, यही सब आने वाला ठीक है सर।
है ना, तो उसमें अपन समझेंगे इस चीज को कि ऑर्डर फैक्टर कब करना है। अब जिस प्लेसिबो ट्रीटेड ने तो कोई ऑर्डर नहीं है ना, मेल फीमेल में भी कोई ऑर्डर नहीं है। हाँ, नॉन सम मार्क में एक ऑर्डर चाहिए था हमें, है ना। कई बार हमें जैसे ऑर्डर चाहिए पड़ता है, जैसे कि 4 3 4 5 गियर, यदि हम इसको कैटेगरी में कन्वर्ट करते हैं, अभी तो डिस्क्रीट है ना, यदि हम उसका कोई ग्राफ बनाते हैं तो उसमें 4 पहले आ जाएगा, जो फ्रिक्वेंसी के हिसाब से, अभी मैं वो भी आपको करके बताता हूँ। तो पहले एक मैं आपको शो कर दूं, इससे कुछ चीजें क्लियर हो जाए। अच्छा, शायद स्मॉल में लिखा है क्या? नहीं, ओ मैंने अभी लिख दिया ना यार, इतना नहीं। ये दिख रहा है आप लोगों को, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी पहले दे रहा है और कम फ्रिक्वेंसी वाला बाद में दे रहा है। ये एल्गोरिथम है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है आपको? राइट सर। जैसे आप और भी देख सकते हैं कि हम देखिए, यहाँ क्या है कि 3 की फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, इसलिए 3 4 5 उसने उसी सीक्वेंस में दिया। गियर की जगह में सिलेंडर लेके देखते हैं, एम्प्टी का देखिएगा, ये क्यों है, ये ऐसा क्यों दे रहा है 3 4 5 6? क्योंकि अपन का ये कैटेगरी में नहीं। यदि मैं फैक्टर सिलेंडर करूं इसको, फैक्टर नहीं है ना ये तो न्यूमरिक था। यदि मैं इसको फैक्टर करता और इसको रन कर, तो वही हो गया। क्यों नहीं ट्राई क्रॉस? मैंने बनाया तो। देखिए 4 6 8, हाँ यहाँ दे रहा है ये 4 6 8, उसी सीक्वेंस में दे रहा है फैक्टर। तो कई बार क्या होता है कि ये फैक्टर का हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी ही पहले देता है, पर यहाँ ये फैक्टर को शायद ऑर्डर फैक्टर ले रहा है, क्योंकि नंबर है वहाँ पे 4 6 है, तो उसने ऑर्डर फैक्टर फॉलो कर लिया है कि नंबर नहीं होता, यदि कैटेगरी स्ट्रिंग होता है तो फिर वो कंफ्यूज हो जाता है। क्लियर? सर एक बार ये फैक्टर हटा दीजिए। नीचे का स्केल चेंज हो गया, 3 4 5 6 7 है, कंटिन्यूएशन में आ गया, जबकि 3 हमारे पास कुछ नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है। क्लियर? फैक्टर में वही देगा 4 6 8। गॉट इट? राइट सर। ये डिफरेंस क्या होता है जब न्यूमरिक है न्यूमरिक को हम फैक्टर कन्वर्ट करना है तो वो उसी सीक्वेंस में रखेगा, ऑर्डर सीक्वेंस में रखेगा, क्योंकि न्यूमरिक ऑलरेडी ऑर्डर में 3 4 5 या 4 6 8। हाँ, यदि कैटेगरिकल है, कोई स्ट्रिंग्स है जैसे कि मेल फीमेल, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाता है, ऑर्डर में नहीं लेता। पॉइंट क्लियर हो रहा है आप लोगों को? हाँ जी, फिर वो ऑर्डर में नहीं लेगा, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं रख दूं 0 1 भी है, तो वो तो ऑर्डर में लेगा। अपन रख के देख लेते हैं। देखिएगा, एम भी मैं देख लेता हूँ। ये ऑर्डर में ही लेगा, 0 पहले 1 बाद और इसको फैक्टर में कन्वर्ट नहीं किया मैंने।
वेक्टर में कन्वर्ट करो। जीरो वन ही दे रहा है क्योंकि वो 01 न्यूमरिक था पहले, तो ऑर्डर में ही देगा। हाँ, यदि कैटेगरिकल होता है इसकी जगह, मान लीजिए इसकी जगह होता जीरो की जगह अपन ने वी सेप लिखा होता और स्टेट की जगह स्टेट लिखा होता 01 की जगह, तो फिर ये किस प्रकार का देगा वो मैं आपको थोड़ा वो चाहे तो अपन कर लेते हैं उसको। आप करके देखिएगा। इसको कन्वर्ट करना है पहले तो हमें इफ एल्स से वी सेप और स्टेट में, ठीक है, कर लेते हैं। चलिए थोड़ा कर ही देता हूँ उसको। Clear। एमडी अपन ने वही लिया हुआ, एमडी कार्ड्स, तो कोई दिक्कत नहीं है। ले लेना है डी सेप। मैंने स्टेट सही क्यों कर रहे हैं? ये एक्चुअली अभी 01 था ना वीएस, तो ये उसको ऑर्डर ही मानता है और फैक्टर में कन्वर्ट किया अपन ने वीएस को किया, तो वो न्यूमरिक था तो इसलिए वो 01 ऐसे ही देगा, 10 नहीं देगा। ठीक है। अब Order मैं इसी, हाँ, ऑर्डर फैक्टर मतलब फैक्टर कन्वर्ट किया, न्यूमरिक था, न्यूमरिक को अपन ने फैक्टर में कन्वर्ट किया तो ऑर्डर फैक्टर होगा ठीक है। ऑटोमेटिकली। पर कैटेगरिकल कोई चीज है, जैसे कि अपन ने देखा था जो इम्प्रूव करके आर्थराइटिस में कॉलम है, तो नन सम एंड मार्क, उसमें मैं स्पेसिफिकली फंक्शन मतलब वो किया था, स्पेसिफाई किया था कि ये ऑर्डर फैक्टर, ठीक है। अभी समझ में आएगा आपको, 2 मिनट में कर लो इसको। यहाँ मुझे एमडी लेना पड़ेगा क्योंकि मैंने एमडी में चेंज किया है, और फैक्टर मैं लिख रहा हूँ। चलो सब हो गया, स्टेट हो गया, ठीक है। देखिएगा, पुराना वाला ग्राफ भी बना रहा हूँ, अंतर समझिएगा तो। यहाँ मैं एम्प्टी क्लास लिख दूँ, देखिएगा फिगर। जब मैं इसको ऑर्डर फैक्टर किया, ओरिजिनल 01 को बाइनरी था जो न्यूमरिक था, तो उसने उसको फैक्टर को ऑर्डर फैक्टर की तरह ट्रीट किया, 0 पहले 1 बाद में। पर जैसे ही मैंने इसको कैटेगरिकल किया, है ना, यहाँ कैटेगरी दे दी, वी सेप और स्टेट नाम दिए 01 के, और फिर मैंने वही फंक्शन चलाया है। देखिएगा दोनों में सिंटेक्स में कोई अंतर है क्या? खाली नाम को छोड़ के एम्प्टी कार्स और एमडी, नहीं है ना। और मैंने जब इसको रन किया तो देखिएगा क्या होता है।
तो कैटेगोरिकल ले लिया इसने। हाँ कैटेगरी का स्टेट पहले वी सेट, तो वो चेंज कर दिया इसने, ठीक है। तो ये यहाँ ऑर्डर नहीं है कि भाई कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, जबकि वन जो स्टेट जो है वो वन के लिए था और वी सेट जो है वो जीरो के लिए था, ठीक है। तो ऐसा कई बार होता है। अब ये ऐसा क्यों लिया इसने, ऐसा क्यों लिया बताइए भाई। अपन की जो एक एल्गोरिथम थी, अपन पहले देख रहे थे, तो इसमें एल्गोरिथम क्या यूज कर रहा है, क्या वो काउंट के हिसाब से यूज कर रहा है किसी और चीज के हिसाब से यूज कर रहा है, आप कैच करें थोड़ा सा। मैं थोड़ा गलत एक्सप्लेन कर गया था पहले। किस चीज को मद्देनजर रख के ये डिसाइड करे कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। जैसे हमने ओ अच्छा, इट्स नॉट अबाउट राइटिंग। कौन सा कैटेगरी पहले लिखेगा कौन सा कैटेगरी बाद में ड्रॉप करना है। आप एक्स एक्सिस पे देखिएगा स्ट्रेट और वी सेट, ये डिक्शनरी फॉलो करता है। एस पहले आता है वी बाद में आता है। व्हाट इज, समझ में आ रहा है पॉइंट आपको? एस पहले आता है राइट सर। वी बाद में आता है। तो इसमें पहले तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिया था, जो जो हायर वैल्यू है वो पहले आ रहा था और लोअर वैल्यू बाद में आ रहा था। अभी सडनली कैसे चेंज हो गया, ये अल्फाबेटिकली हो गया। तो कैटेगोरिकल चेंज हो गया, इस वजह से शायद हो सकता है। तो कैटेगोरिकल कर दिया, तो 0 1 बाइनरी की जगह पहले 0 1 आ रहा था, उसकी जगह इसका नाम दे दिया वी शेप और स्ट्रेट। उसकी पहले भी वो जो प्लेसिबो वाला एग्जांपल दिया था उसमें प्लेसिबो वाज हायर नो, तो प्लेसिबो पहले आया था। अच्छा वो इम्प्रूव में। हाँ आई थिंक वो काम ऐसे कर रहा है कि द टेक्स्ट वैल्यू स्टार्ट अल्फाबेटिकल है, प्लेसिबो पी एंड देन ट्रीटेड टी, तो हो पी सकता है। पहले टी बाद में, यहाँ पे स्ट्रेट पहले वी शेप बाद में। तो ये बेसिकली अल्फाबेटिकली ही लेता है। सीम्स लाइक इट। नहीं, बट उस केस में अगर हम लोग देखेंगे तो हमने जो इम्प्रूव किया था, सो इट वाज नन सम एंड मार्क्ड, जिसको हमने कलर दिए थे रेड ब्लू ग्रीन जो भी, उसमें नन एन पहले आया था, सम और मार्क्ड इस तरीके से आ रहे थे। वो अल्फाबेटिकल नहीं था क्या? नहीं, वो अल्फाबेटिकल नहीं था। और प्लेसिबो में तो अगेन फिर दो ही उसमें फैक्टर थे, प्लेसिबो एंड ट्रीटेड। तो हाँ, वो बाइनरी फंक्शन था 2 और 1, तो उसमें जरूर वो प्लेसिबो पहले दे रहा था और ट्रीटेड बाद में। सर अभी सर से और क्लियर कर लेते हैं इसको। मेरे आई जस्ट रेड इट, मुझे मार्क नन और सम दिख रहा मुझे नन सम और मार्क दिख रहा है जो मैंने है। किया। आई थिंक इसमें ऑर्डिनल और वो जो कैटेगोरिकल बता रहे हैं इसका कुछ हो सकता है। देयर मस्ट बी सम प्ले ऑफ द फैक्टर वैल्यू देयर। हाँ करेक्ट, आई थिंक मैंने कुछ और भी कर रखा था उसके साथ, सो नन सम एंड मार्क्ड। हेलो, यस।
तो इसमें Clear एक हुआ छोटा सा आपको? कंफ्यूजन है कि हाँ, अभी बोलो। जैसे ये स्ट्रेट और वी शेप दिखा रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, हम्म, इससे ऊपर हम लोगों ने जो जीजी प्लॉट आर्थराइटिस और एस्थेटिक हम्म, इम्प्रूव जो लिया है, इसमें हम्म। ये नन सम और मार्क दिखा रहा था। उसमें ऑर्डर्ड फैक्टर थे ऑलरेडी। स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, फैक्टर नहीं है, ऑर्डर्ड फैक्टर है। पहले ही ऑर्डर दिया हुआ है, नन पहले, सम फिर मार्क। व्हाट इट, देखिएगा यहाँ, राइट। ये हमेशा इसी सीक्वेंस में लेगा। हाँ, यदि ऑर्डर्ड फैक्टर नहीं होते तो फिर ये अल्फाबेटिकल लेता, ठीक है। मतलब मार्क पहले लेता, फिर नन लेता, फिर सम लेता। व्हाट इट, यस सर। है ना। ऑर्डर्ड फैक्टर है कि अपना इंपॉर्टेंस है, अभी डेटा प्रिपरेशन पर हम समझेंगे उसको, है ना। बहुत बहुत रेयर इसका यूज होता है, पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत स्पेसिफिक होता है। मेल फीमेल में अपन ऑर्डर नहीं कर सकते, उसको खाली फैक्टर करेंगे। तो इसलिए एफ पहले आ रहा था और एम बाद में आ रहा था मेल फीमेल में। व्हाट इट, राइट सर। है ना। सो टिल द टाइम ऑर्डर्ड फैक्टर नहीं है, ये अल्फाबेटिकल ही लेगा। अल्फाबेटिकली लेगा। ओके, गॉट इट। ये छोटी छोटी मैं पॉइंट्स इसलिए बता रहा हूँ कि हमें ग्राफ बनाते हैं, इन सब चीजों का ध्यान रखना रहता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, तो हमें समझ में आना चाहिए, हाँ भाई क्यों ये पहले आ रहा है, क्यों बाद में आ रहा है, हमें सीक्वेंस चाहिए तो क्या करेंगे। इसलिए क्योंकि क्या होता है न्यूमरिक में, आप देखते हैं ना, न्यूमरिक में भी वो अल्फाबेटिकल जैसे ही तो काम है, 0 पहले, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, इस हिसाब से जमाता है। जब आप उसको फैक्टर कन्वर्ट भी कर देते हैं तो, है ना। अभी तक हम जो बार प्लॉट देख रहे थे वो सिंगल बार प्लॉट था। कलर हम अपने हिसाब से भर सकते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। कलर हमने जैसे कि ये भरा था इसमें टूब में, है ना। ये कलर हमारे बिना एस्थेटिक के, यहाँ मैंने कहीं एस्थेटिक नहीं लिखा, लिखा है क्या। इसका डेटा से कोई लेना देना नहीं कलर का, है क्या। कुछ भी कलर भर सकते हैं, सेम कलर भर सकते हैं, इसलिए एस्थेटिक नहीं है। अब मैं आया कि कलर भी हम एस्थेटिक के अकॉर्डिंग भरें। यदि इसी कलर को फिल को मैं एस्थेटिक में लिया हूं, देखिएगा एक सेकेंड, पहले इसी पे बताता हूँ फिर अपन आएंगे। एस्थेटिक, और यहाँ मैं हटा दूंगा इसको, एस्थेटिक में आएगा फिर ये कलर, और एस्थेटिक में मुझे वो लिखना पड़ेगा जो इम्प्रूव करके वेरिएबल, वो यहाँ लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको पहले एक बार रन करता हूँ पी को, ना? और इसके बाद इसको रन करता हूँ। फिल लिखना पड़ेगा, कलर से नहीं हो रहा, फिल। कलर से खाली आउटलाइन दे, ये देखिएगा यहाँ डिफरेंट कलर आए। हाँ कलर अलग है, राइट। अच्छा, यहाँ क्या किया है मैंने, इम्प्रूव जो था जिसी का मैंने ये बार प्लॉट बनाया उसी को मैंने कलर की फीलिंग के लिए एज ए एस्थेटिक यूज किया। तो अब इन्हें इसको क्या किया, इन कलर को डेटा से लिंक कर दिया। गॉट इट।
इम्प्रूव्ड आ गया ना, डेटा है इम्प्रूव, तो फिल जो है उससे लिंक हो गया, तो उस हिसाब से वो अपना कलर दे दिया। ये नहीं समझ में आया। पिछले बार जो कलर ले रहे थे अपन अपनी मर्जी का ले रहे थे, ये इसका डेटा से कोई लेना देना नहीं था। करेक्ट। यहाँ जो कलर लिया है मैंने, एस्थेटिक यदि इसको ले लिया इसकी जगह, है ना, ठीक है, तो वो वन ऑफ द वेरिएबल्स के हिसाब से लेगा। वेरिएबल्स के हिसाब से कलर वो दे लेगा, जो भी एल्गोरिथम बैठाई होगी कलर की। तो इन कलर्स की भी कोड्स हैं क्या सिस्टम द पैलेट? कोड रहते हैं, पर जब अपने उसको वो दे दिया है एस्थेटिक में दे दिया, तो फिर अपन को जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने हिसाब से डिसाइड कर लेता है, डेटा से रिलेटेड हो गया ना कलर कोड। ये बेस्ट प्रैक्टिस है क्या, एस्थेटिक दे के एलोकेट करना रादर देन अपने हिसाब से देना? नहीं, क्या होता है कि अब ये देखिए इतना ज्यादा ये प्रेटी नहीं लग रहा है ग्राफ, लग रहा है कलर अच्छे नहीं लग रहे हैं, लग रहे हैं आप? नहीं, लोगों की अपनी चॉइस हो सकती है, मुझे तो ये ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा ये लग रहा है। ठीक है सर, इसका बस इतना ही सिग्निफिकेंस है ना? अब हम आते हैं स्टेक बार प्लॉट। तो स्टेक बार सर प्लॉट, सॉरी इंटरप्ट, एस्थेटिक में फिर मैं मेरे हिसाब से कलर दे सकता हूँ? हाँ नहीं, एस्थेटिक में आपके हिसाब से नहीं आएगा, आपको अच्छा। कलर देना है तो विदाउट एस्थेटिक देना है, ओके, समझ रहे हैं? एस्थेटिक में अपने हिसाब से नहीं दे सकते। क्लियर हुआ अभी से? ये राइट, ठीक है सर। आपको फिर इस हिसाब से देना, विदाउट एस्थेटिक के देना है, तो आपका डेटा से लिंक हटाएगा तब भी तो आप अपनी मर्जी का काम कर पाओगे, है ना? राइट सर। और किसी को कोई डाउट इसमें अभी तक में? अभी तक ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। अब स्टेक बार प्लॉट की बात करें तो यहाँ मैं जीजी प्रोडक्ट अर्थराइटिस ले रहा हूँ, एस्थेटिक ले रहा हूँ इम्प्रूव, जो मेन है इम्प्रूव, ये नन सा मेन मार्क ये है। और जियोम बार में जो बार प्लॉट बनाता हूँ, जैसे यहाँ भी लिया था मैंने जियोम बार, इसमें कुछ नहीं लिखा मैंने, यहाँ मैंने जियोम बार में कलर फिल किए खाली, यहाँ वही के वही एस्थेटिक रख दी। यहाँ मैं क्या करूंगा, जो एस्थेटिक है उसमें वेरिएबल चेंज कर दूंगा। देखिए ट्रीटमेंट लिख दिया मैंने, एक्चुअली मैं बना रहा हूँ इम्प्रूव्ड का, यहाँ तो इम्प्रूव्ड आएंगे, पर इम्प्रूव्ड के अंदर वो स्टेक कर देगा ट्रीटमेंट के हिसाब से। ट्रीटमेंट अपने दो हैं, प्लेसिबो और ट्रीटेड। तो मैं बनाता हूँ, क्लियर होगा अभी आप हुआ। मैंने कलर लिया तो बाउंड्री देता है, बॉर्डर देगा आप। यदि मैं कलर नहीं लेकर के फिल लूंगा, कोई भी एक लेना है, या तो कलर लो या फिल लो, कलर में आपको ये बॉर्डर दे देगा खाली, और फिल जब हम लेंगे तो ये कलर भरेगा। तो यहाँ मैंने ट्रीटमेंट दे दिया, ट्रीटेड दे दिया, ट्रीटमेंट सॉरी वेरिएबल ले लिया है, और यहाँ इम्प्रूव लिया है, तो ट्रीटमेंट के हिसाब से इसने स्टेक कर दिया। व्हाट इज, यस सर। है ना? अपन यहाँ जेंडर भी ले सकते थे, उसके हिसाब से करते। व्हाट इट, मल्टीपल वेरिएबल ले सकते हैं सर इसमें, जैसे हाँ। हम लोगों ने, ठीक है सर। स्टेक में दो कैटेगरिकल जाते हैं हमेशा, है ना, न्यूमरिक नहीं होता। स्टेक बार प्लॉट में दोनों कैटेगरिकल होते हैं। इसमें सर आईडी ले सकते हैं? आईडी नहीं, आईडी तो आईडी न्यूमेरिकल, हाँ कर Integer न्यूमेरिकल हो जाएगा। ओके, ठीक है सर। अब हम कलर्स की, आप जो बात कर रहे थे, कलर्स आपको देखना है, कलर्स लिख दीजिए और ब्लैंक छोड़ दीजिए और इसको रन कर दीजिए, आपको पूरे कलर, ये मैं पहले भी बता दूँ, ये आर बेसिक में बता चुका हूँ।
ये अपन पहले देख चुके हैं इसका कोई क्या- है। सर एक बार पिछला वाला कोड दोबारा दिखा दीजिए, ये जो प्लॉट हो रखा है वो। यहाँ ट्रीटमेंट था, देखिए ये भी डिक्शनरी के हिसाब से पी पहले टी बाद। सर इसका कोड कौन सा है? लाइन 67, राइट? ये अपन ने ट्रीटमेंट, ये इधर ही लिया था मैंने, 67 ही था। ये सेक्स की जगह अपन ने लिखा था ट्रीटमेंट। ये वाला तो खाली आउटलाइन देता है, तो इसको तो अभी अपन कवर ही कर देते हैं, कोई जरूरत ही नहीं इसकी, है ना। ठीक है सर। कलर इसमें सर लिखेंगे तो वो खाली बाउंड्री बनाता है, बॉर्डर एज भी नहीं आ सकता ना सर? एज भी नहीं है, एज इंटीजर है, ठीक है। बड़ा अजीब सा बनेगा, अजीब सा बनेगा, आप देखिए मैं एज लिख देता हूँ, आप कहने तो देख लेते, मजे भी ले लेते हैं। क्या किया ऐसा, कुछ नहीं दे रहा हूँ, कुछ नहीं दे है रहे सर। हैं? ना ना कुछ नहीं। नहीं तो मना एक कर दे। है का नीचे तो नन सम और वो आ रहा है। नहीं वेरिएबल है नहीं ये तो इम्प्रूव का आ रहा है ना नन सम और। हाँ, तो एज कहाँ पर है? आप स्ट्रक्चर देखेंगे इसका तब दिख उसमें जाएगा ये। एज है, जैसे आप देखेंगे ना डेटा, तो उसमें एज भी एक वेरिएबल है ना न्यूमरिक लोगों का। तो तो जब न्यूमरिक डालेंगे तो लेगा ही नहीं, स्टेक बार प्लाट में मना ही कर देगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। क्या उसने इसको पूरा ही डिनाइल कर दिया, मैं लूंगा नहीं तुझे, मैं तो खाली इतना बना के दे रहा हूँ आपको इसी के हिसाब से। क्या इज इट क्लियर नाउ अप टू हियर? क्लियर है सर। अब हम बात करेंगे कि जो ग्राफ हम बना रहे हैं इसमें वैल्यू को कैसे डिस्प्ले करें, है ना। जैसे मैं यहाँ खाली ट्रीटमेंट ही लिख रहा हूँ पहले, तो हमारा जो लाइब्रेरी होता है डेटा मैनिपुलेशन का, जो अपना नेक्स्ट चैप्टर में यूज करेंगे हम ज्यादातर डेटा प्रिपरेशन में, तो यहाँ मैं खाली उसकी थोड़ी सी एक फंक्शन बताऊंगा, आगे डिटेल में तो अपन वहीं पढ़ेंगे। तो मुझे क्या करना है, एक फिगर में बनाने वाला हूँ, फिगर 1 लिखा, आर्थराइटिस डेटा सेट को आधे पाइपलाइन किया मैंने, काउंट चाहिए इम्प्रूव किया। देखिएगा मैं क्या किया, और मैं फिग 1 आपको दिखाता हूँ। व्हाट इज इम्प्रूव, और ये उसकी फ्रीक्वेंसी। डज इट मेक सेंस टू यू? राइट सर। है ना। मैं इसकी क्लास दिखाता हूँ, क्या है डेटा फ्रेम, क्लास क्या है, या मेरे को जो फिगर 1 है वो डेटा फ्रेम है एक प्रकार। मैं इसकी जगह टेबल भी तो ले सकता, टेबल भी तो ले सकता। मैंने फिर डेटा फ्रेम क्यों चॉइस किया, बना के देखते एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा रुक के। मैं टेबल को एज ए डेटा नहीं दे सकता, मुझे डेटा फ्रेम या वेरिएबल देना पड़ेगा, है ना। डेटा फ्रेम ही चाहिए यहाँ तो, टेबल एज ए डेटा नहीं हो सकता मेरे। डज दैट मेक सेंस टू यू? पहला एट्रीब्यूट क्या होता है, डेटा। और यदि मैं आपको जीजी प्लॉट का पहला एट्रीब्यूट को, मैं इसके आपको एट्रीब्यूट्स बताऊं, तो सॉरी,
क्या है डेटा। अब डेटा क्या हो सकता है? डिफॉल्ट डेटा सेट टू यूज फॉर प्लॉट if not already a data frame will be converted to by 45 if not specified must be supplied in each layer added to plot। तो if not already a data frame नहीं है तो आपको convert करना पड़ेगा 45 तक। अब फिर 45 देखें आप क्या है 45 model with data ना। So rather than using a function I now recommend using the Bloom package which implement the much wider range of methods 45 may be deprecated in the future। So 45 से बेटर है कि हम उसका आउटपुट जो हमें डेटा फ्रेम देता हो या हमारे पास जो भी उसको हम डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो हमारे पास ये फिगर जो आया इसके थ्रू जो भी हम आउटपुट ले रहे हैं ये हमें डेटा फ्रेम का आउटपुट दे रहा है। मुझे यहाँ डेटा फ्रेम चाहिए, ये तो इसने क्लियर कर ही दिया, पहले वाले कर दिया। ये जो सिंटैक्स है लाइन 74 में ये जो परसेंटेज ग्रेटर देन परसेंटेज है वो क्या कर रहा है? ये पाइप टू फंक्शन होता है हमारा। Okay, ये पाइप क्या का करता है, हाँ आर्थराइटिस में आप क्या कर रहे हैं आगे ले जाएगा चीजों को, तो आपको क्या है वो डॉलर वगैरह नहीं लगाना पड़ता है। सर हमने variable आर्थराइटिस choose करने वाले के। डेटा फ्रेम को पाइप कर दिया काउंट पाइप कर दिया और इम्प्रूव का काउंट ले लिया मैंने खाली। और फिर ये जो नीचे जो लाइन टेबल की है वो ये तो अलग से दिया था मैंने, वो अलग अलग ये अलग। मैं इनको एक ही लाइन में नहीं लिख सकता, पाइप करके नेक्स्ट लाइन अगली लाइन में ही होगा। नहीं लिख सकते हैं, पर ये बेस्ट प्रैक्टिस यही कहलाती है, लिख सकते हैं। सर एक बार लिख के रन करके बताइए। चल हो गया, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि जब भी ये पाइप आता कैसे है, पूरा टाइप नहीं करते हम इसको। ये पाइप फंक्शन आता है कंट्रोल शिफ्ट एम करके देखिए, कंट्रोल शिफ्ट एम या अगले चैप्टर में अपना बहुत यूज होगा, है ना। अभी अपन इसमें डिस्कस नहीं कर रहे हैं ज्यादा, क्योंकि नहीं तो भटक जाएंगे अपन अपने जो चीजें बताना चाह रहा हूँ। अब मैंने फिगर 1 लिया और एस्थेटिक एक्स पे इम्प्रूव्ड और वाई पे आप देखें मेरे पास दो थे, इम्प्रूव कॉलम और एन कॉलम। तो एक्स एक्सिस पे तो मैंने इम्प्रूव ले लिया और वाई एक्सिस पे मैंने एन ले ली। मैंने ये प्लेटफॉर्म बनाया और इस प्लेटफॉर्म पे जब मैं बार प्लॉट बनाऊंगा तो बार प्लॉट तो मैं बिना इसके भी बना सकता था, ये मुझे जरूरत नहीं थी इन चीजों की इसको कन्वर्ट करने की, पर मुझे टेक्स्ट लिखना है उसको, है ना। इसलिए तो जब बार प्लॉट बनाऊंगा तो मुझे इसमें स्टैटिस्टिक्स देना पड़ेगा, एक एट्रीब्यूट देना पड़ेगा जो कि स्टेट एट्रीब्यूट है, और उसमें लिखना पड़ेगा हमेशा आइडेंटिटी, है ना। फिर मैं जो एक पैलेट ले रहा हूँ वो सोलमोन 1 ले रहा हूँ, सेलमोन 1। तो मैं इतना आपको रन करके बताता हूँ पहले, देखिएगा सेलमोन 1 ने अपना कलर दे दिया, फिल कर दिया है उसके हिसाब से। सर प्लीज एक बार वापस बताइए ये वाला सर जो आपने हाईलाइट किया हुआ है। देखिएगा क्योंकि मुझे आगे टेक्स्ट शो करना है, इसमें टेक्स्ट अभी लिखा नहीं है मैंने, है ना। ये नंबर चाहिए मुझे, कितनी काउंटिंग है आती है ना, कई बार काउंटिंग लिखते हैं अपन भी कितना है, उसके लिए मुझे ये सब व्यवस्थाएं करना पड़ेगी। इसमें स्टेट देना पड़ेगा आइडेंटिटी, क्योंकि 2 वेरिएबल है। तो आइडेंटिटी में ये लोग क्या करेगा, बार प्लॉट में जो एन है
उसके हिसाब से इसकी हाइट डिसाइड करेगा। ठीक है, स्टेट आइडेंटिटी। ठीक। आइडेंटिटी और क्या चीज है? ये कोई कॉलम तो है नहीं डेटा सेट, राइट? नहीं, कॉलम नहीं है ये, अपन को एब्रीविएट देना पड़ता है। यदि आप ये नहीं देंगे, सपोज कर लीजिए मैं इसको हटा देता हूँ और फिर मैं कोशिश करता हूँ। अरे यहाँ से ये भी हटाना पड़ेगा मुझे, तभी समझ में आएगा। क्या दे? Stat count can only have X or Y aesthetics. X or Y aesthetics. मतलब काउंट नहीं कर पा रहा है वो, किस चीज को देना है मुझे वाई एक्सिस पे, क्योंकि डेटा फ्रेम है ना। Okay. वाई पे आपने एन लिया हुआ है ना। Y axis पे N लिया हुआ है, तो वो काउंट क्यों नहीं कर पा रहा? हाँ, नहीं ले पा रहा ना। हाँ, यदि अपन वैसे ही कर रहे हो तो वैसे तो बना देता वो, जैसे पहले अपन ने बनाए। वहां तो कहीं भी स्टेट नहीं लिखा मैंने, बार प्लॉट बना रहा था, बना रहा। So सर फिग डेटा सेट को अगर हम देखें फिग हम्म, 1 को, तो उसमें दो कॉलम है, इम्प्रूव्ड और N। हाँ, हम कह रहे हैं कि X एक्सिस पे इम्प्रूव्ड को ले लो और Y एक्सिस पे N को ले एन लो। को ले। क्यों नहीं समझ पा रहा? वो वहां तो ले रहा है, वहां एक्सिस पे तो दे रहा है, हम्म, प्लेटफॉर्म तो बना रहा है। okay. मैं प्लेटफॉर्म दिखाऊंगा तो प्लेटफॉर्म तो उसी हिसाब से बनाया है ना उसने। ये रेंज दे दी ना वाई की, Right. जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है उस हिसाब से उसने अपने आप को डिसाइड कर लिया कितना बड़ा प्लॉट चाहिए मुझे। यहाँ इसने ये दे दिया। पर जब ड्रॉ करेगा तो उसको पता चाहिए कि भाई यह मुझे किस हाइट तक जाना है, ये नन को कहाँ पहुंचाना है। लिखा हुआ है 42 कहाँ लिखा? डेटा में ही है। डेटा में लिखा है, पर इसको नहीं मालूम अभी। तो मुझे स्टेटिस्टिक्स देना पड़ेगी इसमें कि भाई स्टेट क्या है, आइडेंटिटी जो एन है, एन के हिसाब से लेगा ये वाई के हिसाब से। और क्या क्या चीजें होती हैं सर आइडेंटिटी के अलावा जो हमें याद रखनी है? बता। सर ये सिंटेक्स है क्या? हाँ, ये सिंटेक्स। ठीक है। देखिएगा, most aesthetics are mapped from variables found in the data. Sometimes, however, you want to delay the mapping until later in the rendering process. ggplot2 has 3 stages of data that you can map aesthetic from. The default is to map by the beginning using a layer data provided by the user. The second stage is after the data has been transformed by the layer state. The third, the last stage, is after the data has been transformed and made by plot scales. तो मैं आपको यहाँ पहले आपको स्टेट के बारे में बताता हूँ कि क्या है। जो अंदर अपना स्टेट फंक्शन है, स्टेट इक्वल टू दे रहा है स्टार्ट, दे रहा है स्टेट नहीं है। एट्रीब्यूट नहीं है, फंक्शन ही दे रहा है। स्टेट और फंक्शन दे रहा है, फंक्शन नहीं चाहिए ना, फंक्शन नहीं चाहिए, एट्रीब्यूट चाहिए। एट्रीब्यूट मैं आ जाता हूँ जियोम बार, वहाँ उसका एट्रीब्यूट मिलेगा स्टेट।
state count. There are two types of bar chart: geom underscore bar, geom underscore column. Geom underscore bar make the height of the bar proportional to the number of cases in each group, or if the weight aesthetic is supplied, the sum of the weights. If you want to heights of the bar to represent values in the data, use geom.call. Instead geom bar. Use state underscore count by default. It counts the number of cases at each X position. Geom call uses the state identity. It leaves the data as is. तो ये स्टेट का मतलब होता है काउंट, काउंट करें कौन सा कितने बार, ठीक है, it will count that and then it will give it out. यहाँ भी दिया होगा what it Stat is equal to count or stat is equal to identity. अपन ने आइडेंटिटी लिखा है. आइडेंटिटी मतलब कि वो उसी को काउंट करना है, काउंट की जगह ये डिफॉल्ट में काउंट, काउंट तो डिफॉल्ट है. अब स्टेट का इन्होंने यहाँ नहीं दिया, अपन को ढूंढना पड़ेगा. इसमें काफी चीजें उन्होंने ये जो डेज लाइन दे दी ना, इसको इंटरनेट पे सर्च करना पड़ेगा क्या क्या है, ठीक है. तो काउंट डिफॉल्ट है और उसमें एरर आ रहा है, तो हम आइडेंटिटी दे रहे हैं तो वो चल रहा है. काउंट लिखना है तो एरर दे रहा होगा ना. अब वो डिफॉल्ट कब होता है, जब अपन बिना उसके कॉलम नहीं लिए होते ना. काउंट का मतलब है नंबर ऑफ पॉइंट्स इन बिन. तो अब बिन में तो नंबर एक ही बार है. इम्प्रूव में आप देखेंगे कि इम्प्रूव कितने बार आया. फिगर 1 में देखिएगा कितने बार आया. इम्प्रूव में ये कितने बार आया, एक ही बार आया, एक बार आया ना यहाँ. हाँ, इनकी फ्रीक्वेंसी पर 42 टाइम्स दे रहे हैं. पर क्या होता है कि काउंट कब ले रहा है डिफॉल्ट में, जब अपन ये फिगर की जगह हम लेते, यहां पर आता हूं वापस, यहाँ आर्थराइटिस है ना. आर्थराइटिस में मैंने मान लीजिए जेंडर लिया या ट्रीटमेंट ही ले लेता हूं. ये ट्रीटमेंट लिया और इस ट्रीटमेंट का मैं ग्राफ बना, क्या होगा. यहाँ ट्रीटमेंट में दो कैटेगरी है. ट्रीटमेंट ले रहे हैं अपन, क्या ले वहां इम्प्रूव लिया, इम्प्रूव ही लेते हैं. इम्प्रूव में 3 कैटेगरी, नन, सम एंड मार्क. देखिएगा पहले ये देखो, ये समझ में. अब यहाँ तो मैंने कोई स्टेट्स नहीं लिखा कि भाई क्या स्टेट चाहिए, मैंने रन किया, बना के दे दिया इसने. ओके ओके ओके, अब समझ में आया. सो अब क्या हो बेसिकली रहा है, अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या हो रहा है कि जब अपन इसको देखेंगे, आप व्यू करेंगे, तो कितने बार सम आया है वो काउंट करके वो यहाँ रख देगा. इतने बार आया साहब सम, इतने बार आया है, इतने बार नन आया है, सॉरी नन इतने बार आया है, सम इतने बार काउंट हुआ है, मार्क्ड इतने बार. इसकी काउंटिंग करी उसने, ये प्रोसेस बैक एंड में करी उसने और ग्राफ बना के दिया. अब बात समझ में आ रहा है आपको है? क्लियर हुआ ये पॉइंट सबको? अभिषेक, संगीता, हाँ सर क्लियर है. नित्या, सबको क्लियर हुआ ना कि यहाँ जी। जब अपन यहाँ स्टेट नहीं लिखना पड़ रहा, ये डिफॉल्ट में स्टेट काउंट कर रहा है, वो पीछे काउंट कर रहा है, वो काउंट करके वो बार बना रहा है कि भाई ये इतना बड़ा बनेगा, ये इसका ये हाइट होगा, इसका ये हाइट होगा, जितने बार वो आए हैं उस कॉलम में. तो तभी तो Got it? बैकअप बना है, ये तो मतलब लॉजिकल है ना. और जब अपन ने उसको डेटा फ्रेम लिया, डेटा फ्रेम में मैंने हर कैटेगरी एक बार लिखी और उसके सामने उनकी काउंटिंग दी नेक्स्ट कॉलम में, जैसे फिगर 1 में देखिएगा. यहाँ अपन ने क्या किया था, जब अपन फिगर 1 देखते हैं तो कैसा आउटपुट दिखता है, ये दिख रहा है, डेटा फ्रेम बन रहा है. तो यहाँ 2 कॉलम है मेरे पास. इम्प्रूव्ड में मेरे पास नन एक बार है, सम एक बार है, मार्क्ड एक बार. दूसरे कॉलम में उसकी फ्रीक्वेंसी दे दी मैंने. अब समझ में आ रहा है? तो हाउ विल द बार लुक डिफरेंट देयर?
नहीं, डिफरेंट तो नहीं दिख रहा। नहीं दिखेगा ना। हम्म, नहीं, बाहर तो वो वही आएगा। what are we trying to derive out of this? ये तो मतलब this is fine. This is हम्म, how we read the graph. वो तो है ही कि मतलब इतने बार none आ रहा है, that is the frequency and that's how it gets plot. वो तो समझ में आ गया, बट ये सारा कुछ जो हुआ उसके बाद वो नहीं समझ में आया मुझे कि क्यों हुआ ये, हमने क्लास एंड ये सब क्यों किया इसके बाद, why have we learned all this after that? ये हाँ, तो हमने पहली स्टेज में डिराइव कर लिया था। हाँ। अब यहाँ क्या हो रहा है कि हमने ये जो क्लास तो मैंने दिखाने के लिए कि भाई डेटा फ्रेम है, हमने ये काम किया, हमने एक डेटा फ्रेम बनाई है ना, काउंट की कि भाई इस जो आर्थराइटिस में इम्प्रूव को हमने काउंट करके एक डेटा फ्रेम बनाई, हमें टेक्स्ट लिखना है इसलिए बनाई। जब टेक्स्ट लिखना है तो मुझे डेटा फ्रेम चाहिए, है ना, यहाँ पे जीजी प्लॉट में तो डेटा फ्रेम चाहिए। तो मैंने डेटा फ्रेम से ये बना दिया क्योंकि ये एन मेरा कहीं ना कहीं टेक्स्ट में आएगा लेबल के रूप में। अभी मैं पूरा बनाता हूँ, आपको समझ में आएगा, देखिए कि पूरा रन करूंगा तब समझ में आएगा। अब यहाँ टेक्स्ट लिख रहा है, आप टेक्स्ट लिख में रहा है, अपनी जो लेबलिंग हो रखी है उसकी बात। लेबलिंग जो हो रही हाँ। हो रही 42 14 28, ये लेबल कैसे आ रहा है, एन से आ रहा है। और एन क्या है, हमारा एक कॉलम है, यहां से उठा रहा है वो, ठीक है। व्हाट इट, अंतर समझिएगा। पिछले वाले में हमने फिगर कुछ भी नहीं किया था, उसने अपने हिसाब से काउंट किया और उतना ग्राफ हमें खींच के दे दिया। यहाँ पर हमें अलग से एक डेटा फ्रेम ड्रॉ करना पड़ा, फ्रेम करना पड़ा। उस डेटा फ्रेम से हमने फिर स्टेट्स हमें जियोम बार में देना पड़ा कि भाई आइडेंटिटी स्टेट ले लो, आइडेंटिटी है ना वाई। फिर ये मैंने कलर दिया है, कलर कुछ भी रख सकते थे, कलर का नाम है सोलमैन, मैं रेड रख सकता था, ब्लू रख सकता था, ग्रीन रख सकता था। टेक्स्ट जब मैं दूंगा, मुझे ये टेक्स्ट रखना है, ठीक है? जब टेक्स्ट दूंगा तो एस्थेटिक में लेबल, क्योंकि टेक्स्ट तो डेटा पॉइंट है ना, डेटा से रिलेटेड चीज है, तो टेक्स्ट जो है वो एन के अकॉर्डिंग टाइप करेगा। यहाँ पे 42 14 जो हमारे यहाँ 42 14 28 वो टेक्स्ट। और ये वी जस्टिफिकेशन जो है वो वर्टिकल जस्टिफिकेशन जो है वो -0.25, थोड़ा सा नंबर आप चेंज करके देख सकते हैं कि यदि आप प्लस कर देंगे तो क्या होगा, देखिएगा, है ना। तो तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे आपको। लिखा हुआ है इसके, ये उसके लिए है कि हाँ हाउ मच इट शुड बी अबव द बार। हाँ, ओके। आप बीच में रखना चाहें बीच में रख सकते हैं, मतलब वो सब आपको थोड़ा सा एस्थेटिक में बताऊंगा, पर अभी आज नहीं कल बताऊंगा ये थोड़े बहुत इसके जो टेक्स्ट को, टेक्स्ट के साथ कैसे खेला जाएगा इसमें, इसका फॉन्ट चेंज करना है, टेक्स्ट को मिडिल में रखना है, टेक्स्ट को बॉटम पे रखना है, टेक्स्ट की पोजीशन जो भी आप चाहें इसमें रख सकते हैं, ठीक है। सर कहीं पे ये डॉक्यूमेंटेशन है कि ये जियोम वाले जितने फंक्शंस हैं उनका कहीं एक लिस्ट दिख जाए ताकि हम मिल पढ़ जाएगी, सके कि मिल जाए, बार से क्या होता है, टेक्स्ट से क्या होता है, और भी जो जो चीजें। मिल जाएगा। एक सेकंड में देखता हूँ, शायद मेरे पास पड़ी है, आज शेयर कर दूंगा। ये तो प्लॉटली का, प्लॉटली तो नहीं चाहिए।
चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे ढूंढते हैं इसको। चीट शीट होती है तो यहाँ आपको सब तरह की चेट शीट मिल जाएंगी। बेस कमांड की, आर बेस की कमांड, पेरेट जो अपनी एक अभी पैकेज है, कार्टोग्राफी पैकेज, कोलैप्स पैकेज है, डेटा डॉट टेबल है, डिक्लेयर डिजाइन है, एस्टिमेटर है, यूरोसॉर्ट है। जो ये सब तो अपन यूज नहीं करते हैं इतना ज्यादा। मैं आपको बता देता हूँ मशीन लर्निंग का भी काफी आपको चेट शीट्स यहाँ मिल जाएंगे आर पे। और इसमें जीजी प्लॉट की मैं आपको बता देता हूँ। जीजी प्लॉट की चेट शीट जीजी प्लॉट तो ये यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। इसको कर ही देता हूँ अपलोड, और आप भी आप चाहें तो भविष्य में ये साइट में आपको दिखा देता हूँ। आर स्टूडियो, सॉरी rstudio.com, एक बार रिसोर्सेज चैट पे एक बार लिंक भेज दीजिए। ये ना मैं डाल देता हूँ। यहाँ आपको काफी कुछ मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत अच्छा वो है साइट ये। एक सेकंड, कहाँ चला गया? हाँ, मैं ये लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप लोग कॉपी पेस्ट कर लें कहीं पे, है ना। मैं दोबारा ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए चैट शीट में कैसे समझना है उसको। देखिएगा, ये चैट शीट जो है डेटा विजुअलाइजेशन का 2 पेज का चैट शीट है। ये स्टेट्स भी दिया, देखिएगा फंक्शन है अल्टरनेटिव वे ऑफ बिल्ड ए लेयर, है ना, स्टेट्स। तो ये काफी एक बार जब आप समझ जाते हैं इसको थोड़ा सा, और ये रेफरेंस के लिए यूज होती है। आपको अब आप इसका उपयोग कर सकते हैं क्योंकि आपको जियो का काफी कुछ समझ में आ गया। तो ये पूरी चीज ये समझाता है कि भाई बेसिक्स का जीजी प्लॉट, ग्रामर, ग्राफिक्स, द आइडिया दैट यू कैन बिल्ड एवरी ग्राफ फ्रॉम सेम कंपोनेंट्स, है ना। ये सब इसमें दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ आपको ग्राफिकल पैरामीटर्स दिए हुए हैं कि जियोम ब्लैंक ब्लैंक ए प्लस ए उन्होंने वही लिया प्लेटफॉर्म ए प्लस। ए इज द जीजी प्लॉट इकोनॉमिक्स एस्थेटिक डेट एंड अनएम्प्लॉयड। इकोनॉमिक्स करके एक डेटा है, जीजी प्लॉट 2 का ही डेटा सेट है वो। तो आपको अलग से कोई लाइब्रेरी उसके लिए वो नहीं करना पड़ेगी, आप उससे ये वही जीजी प्लॉट के यही सब आप कॉपी पेस्ट करें या इसको टाइप करें और इन्हीं कमांड को आप रन करके देखें, ठीक है। तो ये सब आपको लाइन सेगमेंट्स ग्राफ, 1 वेरिएबल ग्राफ, है ना, 2 वेरिएबल्स ग्राफ, स्कैटर प्लॉट जिसको हम बोलते हैं। फिर कंटिन्यूस बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैसे शो करते हैं, कंटिन्यूस फंक्शंस वगैरह, ये सब काफी कुछ आपको इसके अंदर मिलेंगे, काफी नॉलेज आपकी डेवलप होगी, ठीक है। ये मैं शेयर भी कर देता हूँ। ओके, तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है ना। सर ये भी पॉसिबल हो जाता है कि एक ही बार है हमारे पास और उसी में मैं 3 वेरिएबल ले लूं कई बार, जैसे हम लोग देखते हैं। हाँ। फॉर इंस्टेंस हमने इम्प्रूव वाला ये जो देखा है उसमें हम्म मार्क्स सम और नन एक ही हम्म बार में, मतलब हम्म, 3 बार नहीं हो, एक ही बार में वो तीनों प्लॉट हो जाएं। ले सकते हैं, मतलब पॉसिबल है, उसके पॉसिबल। थ्रू हम कर सकते हॉरिजेंटल हैं। दे देते हैं ना लोग कई बार हाँ इसको, जी, हाँ जी, हाँ जी। एक ही लाइन में हो जाता है, सब सब possible। ओके। ना वो जीजी प्लॉट बनाए इस तरीके से उन्होंने, बहुत कुछ कर सकते हैं उसमें। इवन आर बेसिक में भी हो जाएगी वो चीज, तो क्या है, ठीक है। राइट सर, राइट। तो ये अपन ने देखा है
तरीके से आर में आप चाहें तो बहुत इजी उसमें कर सकते हैं। चलिए मैं करके बताऊंगा उसको, कोशिश करेंगे उसको करने। कल अपन इसमें आगे देखेंगे, है ना। ठीक है Okay, सर। sir. इसलिए अपन Right. धीरे स्लो चल रहे हैं, बहुत सी चीजें हैं, बहुत से एट्रीब्यूट्स हैं, बहुत सी चीजें ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट सेशन में अपना ये खत्म हो जाएगा, बार प्लाट और हिस्टोग्राम अपन निपटा लेंगे, और इसके बाद आएंगे पाई चार्ट, है ना। तो पाई चार्ट के बाद अपना ये जी प्लॉट फिनिश हो जाएगा, कोई स्पेसिफिक प्लॉट्स आपको बता दूंगा, उसकी स्क्रिप्ट दे दूंगा, तो वो भी आप आगे इन फ्यूचर ड्रॉ कर सकते हैं। है ना, तो ये अपन कर लेंगे इसको। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। ठीक है सर। राइट सर। और मैं ये शेयर कर देता हूँ चैट शीट भी, अभी इसके साथ कर दूंगा वीडियो के साथ 1 आध घंटे में, है ना। तो ये आपको चैट शीट भी, और आप लोग भी डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ बहुत तरह की चैट शीट है, पर आप इंपॉर्टेंट ये अभी जो जो काम किए ना वही डाउनलोड करने, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। जीजी प्लॉट की कर लें, डीप्लायर की कर लें, है ना, आर बेसिक की कर लें, ठीक, साइक लाइब्रेरी का कर लें, मिल जाता है। तो मतलब जो जो लाइब्रेरी अपन ने रन करी हम उनकी चैट शीट आप डाउनलोड करें, ठीक है। ओके, हैव ए नाइस राइट डे। सर। ओके, गुड डे सर। Thank you. थैंक यू। Thank you, sir. Good day, sir. ओके Thank you, sir. ओके, थैंक यू।